This is NDTV, and you're watching Classics. For the first 18 years after partition, the Munabao-Khokrapar rail link in the Thar Desert kept the people of Rajasthan and Sindh province connected across the border. Munabao, the last station in India, Khokrapar, the first stop in Pakistan, a distance of just 14 kilometers. But after the 1965 war, the train was stopped and its engine preserved here in Delhi as a war memento, while men and women on both sides of the border wait patiently for another train to come and unite them with their families, whom most of them have not seen for 40 long years. But borders are crossed in more ways than one. Marriage is one such route as Hindus and Muslims from both countries cross over to find spouses for their children. Links remain alive through letters and snapshots, video and audio cassettes bearing messages of birth, deaths and family celebrations. Bonds are also sustained by going on that one-time journey to see friends and relatives, which for the older generation is no less sacred than a holy pilgrimage. And then there is the shared music of the Thar, sung and played by the folk musicians of the region, the Mangyas of Jaisalmer and Barmer, and the Langas from Umarkot in Sindh, who strike the emotional chord. Longing to make that trip on the Munabao-Khokrapar train, which had made its last journey even before many of them were born. It was at a wedding in New Delhi that they met for the first time. हमें पता नहीं वो क्या गीत गाएंगे और उनको पता नहीं ये क्या गाएंगे. हम आए स्टेज पे विदाउट इंस्ट्रूमेंट, कोई हमारा साज वगैरह नहीं था. ऐसे हम गाते बजाते, वैसे हम गांव में गाते हैं, हमारे जो गांव में जहाँ शादी खुशी के मौके पर जहाँ गाते हैं वैसे ही हम गाते, जो पुरानी कला गाते गाते स्टेज पे हम आए और वो भी आए. इसलिए तो हमने जैसे वो अलाप कहा, दोहा कहते हैं यहाँ, तो शादी के वक्त का खुशी का. जैसो दिन आज को ऐसो नितो नित होए, आंगन बरसे मेवड़ा हिवड़े ठंडक होए. ये हमने कहा दुआ, वहाँ से आए वो उन लोगों ने. चित चोखा मन उजड़ा दलपत ए धोला, सो घड़ी सुखियारती भल सैणा भेड़ा. तो ये दोनों दुआ में एक ही हो गया, बस एक ही राग, बस वही आवाज़, वही बुलंद आवाज़ की. हमारे जो गांव में जो लोग रहते हैं, फोक जिसको लोक संगीत कहते हैं. They shared a heritage, a few ancestors, but knew each other only by name. जौहर खान को पता नहीं कि ये उसका नाम ये है, बरकत खान को जी पता नहीं कि ये वो कलाकार है. आप उसमें मिले उस वक्त अपने आप तो तहे दिल से आंसू हम दोनों के आ गए. सोरे घड़ी रे सो घड़ी रे हो जी सिखियार तीरा सखियार रे आज रे सो घड़ी जो आज की ये घड़ी है, तो बहुत सुख की घड़ी है. सो घड़ी सुखी आरती भल सेना बेड़ा, भल रे सेना रे आज रे राज भेड़ा. But not everyone is as fortunate.
Daryabai was married in 1979 and lives not far from Barmer town. She was only 16 at the time. Daryabai is a Sodha Rajput from the other side of the border. Hers is one of the very few Hindu families that chose to stay back in the village after the 1971 war, which meant that Darya's parents had to look much further for a husband within their caste for their daughter. It's been 26 years since she has seen the home of her childhood or the face of her father. 16 साल रहती वो मैं 16 साल रहती आज 26 साल हुआ है 27 साल बैठी है माँ बाप देखे ही नहीं इतना साल नागरे दे मड़ी को हमें नागरे दे मड़ी है तो मैं ये रास्ता खुला तो जल्दी जाएगा फिर माँ बाप रे तो बहुत मन में आवे भाई छोटा सा था बड़ा हुआ भाई की शादी हुई है मैंने कब नहीं देखा था कब देखा नहीं किया था मन मन घने आवे सारी ये सारे लोग है सहेले सब है कब मिला याद आती है बहुत याद आती है याद नहीं आती आप सोचो आपका मैत्र कैसी है जैसे हमारा ये उधर का तो फोन आता है पत्थर आता है तो ट्रेन शुरू हो जाएगी तो आप पहली ट्रेन में जाएंगी तो मैं पहले ट्रेन मन में खुशी गणे माँ बाप ने मिला माँ बाप पिताजी देखे ही को आंखियों में नजर कौन देखे सुने सामने सब देखे को नहीं नजर को नहीं हमारी आत्मा खुश हुए. She is not the only one who waits. Across the sand dunes of the Thar, thousands of families are waiting like her to see this station come to life again. Because today, the journey from here to Pakistan takes a long, long time. A few men from the village of Gagaria who have made the trip once are not sure they want to do it again. उधर हमारे बिरादर पाकिस्तान में बॉर्डर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे करीब 40-50 गांव में रिश्तेदारी भी है. मेरी बहन वहाँ शादी की हुई है और मेरा नाना भी वहाँ है ननिहाल, और दूसरे बिरादर के 3-4 पीढ़ी से भाई हैं वो भी वहीं रहते हैं. और 98 में यहाँ से पाकिस्तान गया था पासपोर्ट के जरिए. यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से अटारी गए, अटारी से पाकिस्तान बागा गए, वहाँ से लाहौर गए, लाहौर से हैदराबाद गए. करीब 5-6 दिन का टाइम लगता है. बहुत जाएं तो कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से तो 25 किलोमीटर है साहब. यहाँ से सीधी ऐसे सीधे रास्ते हैं 25 किलोमीटर है. मुनाबा से जाएं तो 1 दिन का ही काम है, 1 दिन से ज़्यादा काम नहीं है. और वैसे आपको 6 दिन लग गए? वैसे 6 दिन लग गए. परेशानी भी खूब हुई. This region on both sides, closest to the fence, Mithi and Umarkot districts in Pakistan and Jaisalmer and Barmer districts in India, is one of the most backward, inhabited by poor Muslims and Hindus dependent on agriculture for survival. But with the drought situation getting worse every year, they're forced to work as laborers. For them to raise the money for such a long journey is impossible. मेरे भाई, मेरे चाचा वगैरह सब पाकिस्तान में रहते हैं. 1947 में हम लोग यहाँ आए थे. उसके बाद में हमें कोई भी जाने का वहाँ मौका नहीं मिला, क्योंकि हम लोग यहाँ रह गए और वो वहाँ रह गए. उनकी चिट्ठियाँ विट्ठियाँ पहले आती थी, वो भी बंद हो गई. अब तो कोई समाचार नहीं है. उसमें हमारे रिश्तेदार काफ़ी, मेरे चाचा वगैरह सब ख़त्म हो गए. वो हैदराबाद में रहते थे पहले. उसके बाद में हमारे पास कोई सुविधा नहीं. अब हम जाना चाहते हैं तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो वहाँ खर्च करके हम दिल्ली होते हुए, वहाँ लाहौर होते हुए जाएँ. और ये रास्ता खुलने से हम गरीबों का सबका भला हो जाएगा. And for those who come from Pakistan to see their friends and families here, the crossing is even more difficult. The closer they come to meeting them, the more distant they grow. Mohan Lal arrived in Jodhpur from Umarkot 10 days ago. He wants to travel to Shiv, his village in Barmer district, but cannot go there because foreigners are not allowed to enter the border area. So he will stay here for the next 3 months with relatives and wait for people from Shiv to visit him. Mohan Lal has the resources to stay in Jodhpur, but there are many who don't. And the burden of looking after them in the city falls on their families in far-flung hamlets on the border. दूसरे को सिक्का है उसमें क्या, कोई जोधपुर आता है ना, फिर आगे गवर्नमेंट यहाँ उनको परमिशन नहीं देती, फिर आगे नहीं जा सकता हो तुम. यहाँ से 2 जाने आते हैं तो हम हमारे घर के अंदर ये 62 भाती आओ एक घर में. दूसरा हमारा सब भाई वगैरह उधर दूसरा भी होगा. 62 किस तरह से जाए? एक जैसा हमारा सरपंच जैसा को एक जना चला जाए, दूसरे के पास भाड़ा खर्चा नहीं है तो तकलीफ पड़ती है. मैं कहता हूँ कि इससे वहीं भी अच्छा हो, ठीक हो. और यहाँ से कोई जा सकता है तो वो पूरे बॉर्डर तक
पाकिस्तान सबको ले, उनको कोई बोला नहीं सकता अपने यहाँ से जाने वाले को, यही तकलीफ है। तो जो यहाँ से मिलने जाता है उसका कितना खर्चा आता है? उतना तो बहन जी उसका तो 50,000 रुपया खर्चा हो जाता है। एक तो यहाँ से जाना पड़ता है, फिर उनको मेहमानी करनी पड़ती है, किसी का घर भाड़े नहीं मिलता तो वो भाड़े वाला वो ले गए, जल्दी वापस निकाला जाता, हमारी बेइज्जती होती है कि मैंने आया था आपको मिलने के लिए, सब कैसे नहीं आए, और हमको रोका नहीं। तीन महीने की म्याद होती है, कोई महीने भी रह सकता नहीं, एक दिन में जा नहीं सकता। ये महंगाई में इस मजबूरी से दोनों सब बैठी हुई। But still they wait. Devi Chandra is a school teacher in Jamal Ki Dhani. His grandparents continue to live in Pakistan and tend to their land after his parents fled with him to India in 1971. They kept Devi Chandra's older brother and sister with them. It was with great difficulty that he sent his old parents to meet them in 1999. मेरे ध्येय बनाया था कि मैं पढ़ाई करूंगा, सक्सेस होगा, तो सबसे पहले मेरा ध्येय होगा मैं माता पिता को पासपोर्ट बना करके उनके दर्शन कराने के लिए भेजूंगा, देखने के लिए। और मेरी सर्विस लगी, उसके बाद मैंने 10 रुपये बचा करके अल्प बचत के रूप में उनसे पासपोर्ट बना करके माता पिता को 95 के अंदर 99 के अंदर पासपोर्ट के अंदर पाकिस्तान भेजा। ये स्थिति हो गई कि माँ और पिताजी मेरे दोनों ने अपने बेटे को नहीं पहचाना। इससे बढ़कर कोई हैरानी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने 7 साल के बच्चे को छोड़ा था, अब उसकी उम्र 40 साल तक हो गई, 35 साल, तो उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं पहचाना। नाम से ही पता लगा कि ये बेटा है। अगर हम रास्ते में मिल जाते तो ये नहीं पहचानते कि ये मेरा बेटा है, या वो नहीं पहचानता बेटा कि ये मेरी माँ है।